Hello friends, welcome to the introductory lecture of Samachar Manthan program 2021. So, as you all know that the world is under lockdown and we are facing a serious threat from a virus, and virtually if I see all the classrooms in the country and in the world are closed except one classroom, which is virtual classroom, which is online platform. Through online platform, you can sit in your home and you can still continue with your preparation. So my advice to all the aspirants who are preparing for the 2021 exam is to fasten your seat belts. Stop wasting your time sitting idle in your home. This is the time, this is the right time when you can fasten your seat belts and you can start your journey, you can start your preparation for 2021 exam. So as you know that current affairs is a most important component of the civil service exam, whether it's prelims, whether it's mains, or whether it's interviews. UPSC few years back, UPSC was more focusing on static part, but in last 5-6 years, since they have changed, since they have introduced the new pattern, current affairs has become the most important area in your civil service preparation, and we will use all the data to prove these facts. But as you know that, see, ultimately if you see the syllabus of mains, right, majority of the topics have a dynamic component. For example, let's take let's take the IR topic. So in IR topic, if you see, there are various kind of relations that you read from the basic books. For example, India-Pakistan relations, India-Bangladesh relations. But if you read only that static part, that will not fetch you the marks. You will only get the marks when you will mention the recent initiatives, the recent cooperation between two countries. Same goes with topics like agriculture marketing. Agriculture marketing, APMC issues, you can all read from the basic UPSC books. But if you don't update it with the recent, for example, recently there is ENAM, there have been certain changes introduced in the ENAM. So when you don't fill your answer with these current information, then you can only get 3 marks, 4 marks, you cannot get more than that marks, right? So ultimately, current affairs, you have to fill each and every part of the syllabus with current affairs. Next we will deal with is how UPSC is, or how UPSC questions are linking current affairs with the static part. For example, let's take this example. The Central Administrative Tribunal, which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its power as a independent judicial authority. Explain. Now, this question has both current and the static component. If you see the first line, the CAT, which was established for redressal of grievance and complaints. So yahan pe in the answer you will mention the mandate of the CAT. The next part is nowadays is exercising its power as an independent judicial authority. So in this answer you will use both static knowledge and the current affairs knowledge. You will mention how CAT is exercising its power as an independent judicial authority. So this actually proves the importance कि कितना important हो गया है current affairs आज के time पे, ठीक है? So we will substantiate that with also some data. So let's look into the importance of current affairs in mains. So if you see the importance of current affairs in mains, you can see that GS1 paper की अगर हम बात करें, which is the most static paper, GS1 paper में 2019 में 12 out of 20 questions were from current affairs, and the data was similar in 2018 also. So why does, people usually say कि GS1 के लिए तो आपको books पढ़नी है, news से कुछ नहीं होगा. But this is again a myth, because even from the most static topics like history, like arts and culture, like geography, like social issues, they are asking questions which have current affairs orientation. For example, let's see this question. What are the challenges to our cultural practices in the name of secularism?
So this secularism is technically mostly a static topic, but this question has a करंट अफेयर्स ओरिएंटेशन, बिकॉज ये आज की बात कर रहा है, जो आज चीजें हो रही हैं कि लोगों को प्रैक्टिस नहीं हो रही है, लिबरलिज्म के नाम पे, देयर हैव बीन सम प्रैक्टिसेस which have come under scandal. For example, if you talk of South India, they have a festival of Jalai Kuttu, and they have been voices raised against that उसमें animal cruelty होती है. तो all these are challenges to our cultural practice in the name of secularism. Next we have is, are we losing our local identity for the global identity? Discuss. अब यहाँ पे भी पूरा करंट अफेयर्स ही वो रहेगा कि कैसे हम लोग एक होमोजाइजेशन हो रहा है हमारा, कैसे हम लोगों का कल्चरली वी आर बिकमिंग द सेम. थर्ड क्वेश्चन देखो आप, सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज अ नीड ऑफ द मोमेंट. डिस्कस. अब देखो अगेन व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन, इट्स आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन, बट यहाँ पे भी करंट अफेयर का कंपोनेंट है कि कैसे हम हमारे आर्ट हेरिटेज जो है वो हमारे थ्रेट में है आज की डेट में. तो ऑल दीज हैव करंट ओरिएंटेशन. नेक्स्ट वी हैव इज, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स. तो अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट इसमें भी करंट अफेयर्स ही है जो लोग पूछ रहे हैं. Next we have is, discuss the factors for localization of agro-based food processing industries of northwest of India. Again, that's a geography question, economic geography question, but यहाँ पे भी current affairs से ही thinking है. तो technically GS1 जिसकी सबसे कम importance है current affairs में, GS paper 1, वहाँ पे भी current affairs जो है 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो current affairs से linked रहते हैं. Next we have is GS paper 2. तो जीएस पेपर 2 की हम बात करें तो 2019 में 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस वर फ्रॉम जीएस पेपर 2. 2018 में द नंबर वाज 16 आउट ऑफ 20. तो यहां पे भी पीपल से कि पॉलिटी इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट, बट टेक्निकली ऐसा होता नहीं है. कुछ क्वेश्चन छोड़ दो आप, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक और करंट को लिंक करते हैं. जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था कैट वाले में. जीएस पेपर 3 की बात करें, 19 out of 20 questions in 2019 and 17 out of 20 2018. So almost 95% of the paper, 95% of the questions asked in GS paper 3 are asked from the current affairs. Next we have is importance in prelims. तो prelims में 15 तक क्या था कि स्टैटिक पे गवर्नमेंट फोकस, यूपीएससी जो थी वो स्टैटिक पे फोकस करती थी एंड करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस कम थी. बट 16 से दे हैव लिटरली, आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द पेपर इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड लिटरली दे आर मेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम straight from the newspaper. And Jishan sir has also highlighted in one of the earlier public videos how we can utilize newspaper for solving the prelims paper. So you can watch that video also. So literally प्री में आज के डेट में 50 क्वेश्चंस के आसपास, 50% के आसपास जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी जो है करंट अफेयर्स से पूछ रहा है. चाहे आप इकोनॉमी देख लो, चाहे आप ज्योग्राफी देख लो, जो क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर बेस्ड ही रहता है. सो यूपीएससी अब ये नहीं देखते कि भाई इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का एंगल उसमें डालने की कोशिश करती है. बिकॉज यूपीएससी भी ये ट्राई करना चाहती है कि देखो स्टैटिक ऐसी चीज है जो आप एक बार, बिकॉज अल्टीमेटली दे वांट पीपल, दे वांट एस्पिरेंट्स हु आर हार्ड वर्किंग. ऑल्सो दे वांट एस्पिरेंट्स हु आर अप टू डेट विद द रीसेंट नॉलेज. तो अगर आप स्टैटिक की बात करोगे, यूपीएससी सिर्फ स्टैटिक पूछेगा तो भाई फिर तो उसमें इट इज नॉट टेस्टिंग द रियल कैपेबिलिटीज ऑफ एन एस्पिरेंट. बिकॉज आप 4 बुक पढ़ लोगे, उसको 4 बार रिवाइज कर दोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व द पेपर. तो आपकी रियल नॉलेज टेस्ट नहीं होगी. रियल नॉलेज आपकी ये टेस्ट होगी कि आप कितना अपडेटेड हो आजकल के करंट अफेयर्स से. नेक्स्ट वी हैव इज इंपॉर्टेंस इन इंटरव्यू. सो इवन इन द पर्सनैलिटी टेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स, कुछ का सम ऑफ देम उनका डैफ बेस्ड इंटरव्यू होता है, बट डैफ बेस्ड पे भी वो लोग कोई चीज को करंट से ही लिंक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव मेंशन्ड योर सिटी as Pune, so probably if something recent has happened in
पुणे, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन दैट. सो वो तो आप छोड़ ही दो. उसके अलावा भी यूपीएससी आस्क क्वेश्चन ऑन वेरियस इश्यूज. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370, you know आधार, right to privacy. So these are all issues which are debatable. Cryptocurrency, these are all issues which are debatable. So debatable issues जो opinion based issues होते हैं, इंटरव्यू में वो काफी यूपीएससी पूछती है. So ultimately it means कि करंट अफेयर्स में एक चीज भूल गया, एसए पेपर. एसए पेपर में भी जो पार्ट 1 होता है या पार्ट 2 भी होता है, उसमें भी करंट अफेयर्स से ही वो लोग टॉपिक्स पूछते हैं. सो आपका सारे पेपर सॉरी सारे पेपर, प्रीलिम्स, मेंस में जीएस पेपर, मेंस में आपका जीएस के साथ साथ आपका जो ऑप्शनल वो रहता है, आपका एसए पेपर रहता है, साथ ही इवन ऑप्शनल पेपर जिनका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ये पॉलिटिकल साइंस है, जिनका ऑप्शन ज्योग्राफी है, उनको भी करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा. सो हर एक पार्ट, हर एक पेपर पे करंट अफेयर्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस रिफ्लेक्ट होती है. सो नाउ लेट्स कम टू द फिलॉसफी ऑफ दिस प्रोग्राम, Samachar Manthan program. It's actually not a new program. It's been 3 years since we are running this program, and to actually work more harder for you. So first, before we come to the first component, which is the diversified coverage, let me give you some example. So if you see the first part, the first question, it says, if amendment bill to the Whistleblower Act 2011 is tabled in the parliament, there may be no one left to protect, critically evaluate. अब ये जो क्वेश्चन है, ये यूपीएससी ने पूछा था कुछ साल पहले, ये डायरेक्टली स्क्रॉल से उठाया गया है. मैंने लिंक भी शेयर किया है आपके साथ. स्क्रॉल का आर्टिकल था, इफ अमेंडमेंट्स टू व्हिसलब्लोअर एक्ट आर पास, देयर मे बी नो वन लेफ्ट टू प्रोटेक्ट. सीधे उन्होंने आर्टिकल से ही क्वेश्चन बना दिया है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप. व्हाट फ्रांस लर्न और व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म. ये भी उन्होंने 2019 में पूछा था. 2018 में वायर ने ये आर्टिकल जो है कवर किया था, जिससे यूपीएससी ने ये सवाल बनाया है. द आर्टिकल वाज इंडियन सेक्युलरिज्म लेसन्स फॉर वेस्ट. यहां पे फ्रांस का भी एंगल आया है. ठीक है, तीसरा हम क्वेश्चन देखें तो विल सी कि इट सेज, हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड टूरिज्म. तो ये जो क्वेश्चन है, ये भी आपका डाउन टू अर्थ में 2018 में कवर हुआ था, और इसी से इन्होंने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. नेक्स्ट वी हैव इज, द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट मेकिंग ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, क्लैरिफाइड. अब ये जो क्वेश्चन है, ये भी इन्होंने लाइव मिंट के आर्टिकल से पूछा है, हाउ पोस्ट लिबरलाइजेशन बजट शेप्ड इंडियाज एस्पिरेशन. तो अब आप खुद देखिए, ये जो मैंने 4 क्वेश्चन बताए, ये 4 डिफरेंट सोर्सेस से पूछे हैं. इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट यूपीएससी हैज गॉन बियॉन्ड हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस नाउ. It is asking questions from multiple sources, and literally it is not possible for an aspirant to go through all these sources because आपके पास टाइम लिमिटेड है. आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, आपको प्रीलिम्स की तैयारी भी करनी है, स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना है. So you don't have time. You cannot devote 8-9 hours every day in reading those current affairs. So rather than you working hard, we will work hard for you. हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे we have a team of 4 people who research every day all these sources. For example, one person will go through Wire and Scroll, one person will go through Economic Times and Live Mint. So ultimately we research for you, and whatever article which we find relevant for UPSC, we try to cover that in our weekly lectures, and we provide that in the form of notes also. बिकॉज अल्टीमेटली ये इससे आपका क्या फायदा है? फायदा ये है कि अल्टीमेटली इफ यू कैन गिव 10 hours ऑफ करंट अफेयर्स, 10 hours ऑफ टू समाचार मंथन प्रोग्राम, इट विल ओनली टेक योर 10 hours इन अ वीक. तो आपके पास टाइम बचेगा कि आप अपना स्टैटिक पार्ट और अपना
ऑप्शनल का जो पार्ट है आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फिलॉसफी विच इज डाइवर्सिफाइड कवरेज। Next we have is what to read and what to ignore. Now this is also something which is, you know, जो लोग veterans हैं, who have been preparing, who have given mains, उनके साथ तो it's very easy, you know, they know what to read, what to ignore. But those people who have just started preparation, for them it's very difficult to actually see कि क्या चीज इग्नोर करना है, क्या चीज रीड करना है। I can give an example of my cousin. My cousin just started preparation और मैं एक दिन उसकी डायरी देख रहा था, तो उसकी डायरी में उसके नोट्स थे और नोट्स में लिखा हुआ था कि साउथ अफ्रीका में फलाने जगह माइनिंग एक्सीडेंट हुआ जिसमें 30 लोग मर गए। उसने पूरा उसका आर्टिकल उसको पूरा उसने समराइज फॉर्म में न्यूज़ को कवर किया था। So I just asked him, I said, this is not relevant. This is not your other back exam. It's a UPSC exam. They don't ask these facts. So ultimately, this is a problem majority of people face. कि न्यूज में क्या चीज पढ़ें, क्या चीज इग्नोर करें। Let's give an example of that. Example of what to ignore, which people actually find it relevant. अब एक न्यूज थी बिजनेस टुडे में कि इन्फ्लेशन राइजेस टू 7.95% इन जनवरी, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट्स राइजेस टू 7% इन जनवरी 2020, ठीक है। तो अब ये दोनों न्यूज मेजॉरिटी ऑफ एस्पेक्ट्स को लगेगी कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें करनी चाहिए, वी शुड गिव 5-7 मिनट्स टू इट, बट एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपको महीने के ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है। आपको एक ब्रॉड ट्रेंड पता होना चाहिए कि 6 मंथ्स में या 1 साल में एक्सपोर्ट्स फॉल हुए हैं या इंक्रीज हुए हैं। अगर आपसे यूपीएससी एक्सपोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई जनवरी में एक्सपोर्ट जो है वो 4% गिर गया, नहीं। You will share the broad trends in 2019 to 20 exports in India declined by this month. So there is no use of wasting your time in this news. इस टाइम को आप किसी और अच्छी चीज में लगा सकते हैं। तीसरी चीज, इट्स अ ओपेड इन इंडियन एक्सप्रेस, इंडियाज लॉकडाउन, एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय पी चिदम्बरम। द ऑथर ऑफ द ओपेड इज पी चिदम्बरम। अब लोगों को लगेगा कि भाई कुछ कोविड से रिलेटेड ये है तो इसको पढ़ लो, बट पी चिदम्बरम इज एन ऑपोजिशन फिगर। द आर्टिकल इज फिल्ड विथ बायस, right, filled with his personal bias, because naturally it's a job of opposition to highlight the weaknesses of the government. तो यहां पे आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं मिलेगी। प्रोबेबली कोई थर्ड पर्सन जो न्यूट्रल है या जो जर्नलिस्ट है, आप उसका ओपेड पढ़ लेंगे सेम टॉपिक पे, तो प्रॉब्ली इट्स बेटर फॉर यू, राइट। चिदम्बरम के देयर आर सम आर्टिकल्स ऑफ चिदम्बरम ऑफ इकोनॉमिक्स which are actually good, जिसमें कहीं भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं, वेयर ही टॉक्स एज अ प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट, वो आप पढ़ सकते हो। पर जहां पे भी थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व है, यू हैव टू स्किप दैट, ठीक है। ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ ओपेड्स विच कम विद द रिपीटेड थीम्स। फॉर एग्जाम्पल, हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने में कि ओपेड एंड और कोविड एंड फिस्कल स्टिमुलस, रोज एक ना एक इकोनॉमिस्ट इस पे सजेशन देता है कि भाई नोट छापो, आरबीआई नोट छापे और गवर्नमेंट जो है लोगों में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। एवरी डे देयर इज वन ओपेड। नेचुरल सी बात है, अगर उस ओपेड में कुछ नई चीज नहीं है, अगर उस ओपेड में कोई नई चीज नहीं है, तो आप जो है देयर इज नो यूज ऑफ रीडिंग द ओपेड। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपको मालूम क्या चलेगा कि इसमें नई चीज नहीं है? हम बताएंगे, वी विल रीड फॉर वी रीड एवरी ओपेड and then we find out ki which OPED we should teach in the class and which we should ignore. Next is extracting UPSC relevant information from the news. अब देखो ये भी बहुत जरूरी है। न्यूज तो आपने पढ़ ली, अब न्यूज को यूपीएससी रेलिवेंट, प्रीलिम्स के लिए वो कैसे रेलिवेंट है, मेंस के लिए वो कैसे रेलिवेंट है, ये जानना भी, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विच मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स फेस। तो टेक्निकली फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो एक न्यूज थी ये, हाउ रिवर्स रेपो बिकेम बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब इस न्यूज में मेंस के लिए क्या रेलेवेंट है? मेंस के लिए रेलेवेंट ये है, क्रिटिकली एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्स रेपो रेट एज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन द इंडियन इकोनॉमी। ये सवाल पूछ सकता है यूपीएससी मेंस में।
प्रीलिम्स में कहां से पूछ सकता है? रिवर्स रेपो रेट, इस न्यूज के अंदर एलटीआर और लॉन्ग टर्म रेपो रेट्स वो भी कवर हुआ था, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस न्यूज में डिस्कस हुए थे, इस आर्टिकल में डिस्कस हुए थे। तो इस चीज को कि वो कैसे रेलेवेंट है ये हम लेक्चर में आपको बताते हैं। when we discuss the news, we also tell you कि how the news is important for, और what can UPSC ask from the news, prelims के point of view से and mains के point of view से। Next we have is focus on developing answer writing skills। अब इसके बारे में तो what should I say? आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर करंट अफेयर्स के साथ कोई और चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आंसर राइटिंग। बिकॉज आप इंफॉर्मेशन भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, अगर आप उसको निकालोगे नहीं आंसर लिखने में तो आप उसको ढंग से यूज नहीं कर सकते हो। आई कैन टेल यू माई एग्जाम्पल, आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट, एंड आई न्यू एवरीथिंग, यू नो, प्रॉब्ली इतने मैंने नोट्स बनाए थे, इतना किया था, बट मेरे जीएस में नंबर कम थे। क्यों? बिकॉज आई डिडंट डू एनी आंसर राइटिंग। आई न्यू अबाउट एवरीथिंग, बट 200 वर्ड में उसको कैसे एक्सप्रेस करें वो नहीं आता था, राइट। उसके बाद देन आई लर्न, आई डिड सम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आई वर्कड विद माय इनोवेशन, आई वर्कड विद माय स्ट्रक्चर, एंड इन वन ऑफ द अटेम्प्ट्स आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन जीएस। तो टेक्निकली आपको आंसर राइटिंग किए बिना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम। अब आंसर राइटिंग पे हम कैसे वर्क करेंगे? यहां पे देखो, पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि वीक में जितनी न्यूज आती है उस न्यूज को, तो इट्स अ 4-वे प्रोसेस। पहले होगा लेक्चर, लेक्चर को आप देखो, लेक्चर को देखने के बाद आप नोट्स पढ़ो। उससे क्या होगा कि लेक्चर आपने देख लिया तो नोट्स पढ़ना आपके लिए इजी हो जाएगा, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नोट्स। उसके बाद आप वीकली टेस्ट दो। वीकली टेस्ट किससे बनता है? उसी करंट अफेयर से मेंस का वीकली टेस्ट हम लेते हैं कि अगर हम 10 क्वेश्चन आपको हर वीक में आपको टेस्ट लेते हैं। उसके बाद आपको रिव्यू मिलेगा, रिव्यू से आप उस रिव्यू को अगले टेस्ट में उस रिव्यू को आप इंप्लीमेंट करिए, जो आपको चेंजेस बताए गए हैं। तो इट्स अ होल प्रोसेस। इसके बाद एक चीज ऑलमोस्ट जो रहेगी वो ये रहेगी रिटेंशन, कि आपने जो भी पढ़ा है आप उसको रिटेन करेंगे, बिकॉज जब उस पर लिख लेंगे ना तो फिर वो शॉर्ट प्रिपरेशन हो जाती है। सो दे विल बी 52 वीकली टेस्ट, एंड अगर हम लास्ट ईयर का मेंस देखें तो ऑलमोस्ट 50% पेपर जो था वो समाचार मंथन के वीकली टेस्ट से आया था। जो क्वेश्चंस बने थे, वर्डिंग चेंज थी लेकिन थीम सेम थी, ठीक है ना। तो आप जब आंसर लिख लोगे एक बार यहां पे, तो आप जब यूपीएससी भी वही सवाल पूछेगा आपसे उसी थीम पे, इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू राइट देयर। तो 52 आपके वीकली टेस्ट होंगे मेंस के, और प्रीलिम्स के मंथली टेस्ट होगा उस मंथ की जितनी करंट अफेयर्स होगी उसके बेसिस पे। तो आपके 12 प्रीलिम्स के मंथली टेस्ट होंगे इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। और ये प्रीलिम्स के टेस्ट जो होंगे ये करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटेल्ड नोट्स विथ प्रॉपर कैटेगराइजेशन ऑफ न्यूज इनटू मेंस एंड प्रीलिम्स कैटेगरी। तो नोट्स का एक सैंपल जो है वो हम आपको, जो डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो का उसमें हम अटैच भी कर देंगे, सो दैट यू कैन सी फ्रॉम योर सेल्फ कि किस क्वालिटी किस लेवल के हम नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स रहता है इसमें प्रॉपर कैटेगराइज रहता है, टॉपिक वाइज, प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज। व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन मेक योर ओन माइक्रो नोट्स फ्रॉम दीज नोट्स फॉर योर ओन प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये हम कैसे देते हैं? वीडियोज में वी ट्राई टू इंश्योर कि कोई भी टॉपिक हो, कितना भी टेक्निकल टॉपिक हो, उसको थ्रू एग्जाम्पल समझाएं, कुछ गिव यू सम डायग्राम, उसके थ्रू समझाएं, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज पूरा फोकस जो हमारा रहता है इस प्रोग्राम में वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को इंप्रूव करने में रहता है, कि कल को आपसे अगर इस टॉपिक पे पूछ लिया जाए तो आप उस रॉट लर्निंग ना करें, आप उस कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। दूसरी बात, हम वीडियो में देखो, वीडियो जो हमारा लेक्चर होता है इट्स यूजली 4 आवर लेक्चर इन अ वीक। सो I will take economy, IR, polity and governance and social issues, and Shweta ma'am will take environment and science and technology. Also Rakesh sir will take the guest lectures. तो जो हमारा लेक्चर्स होते हैं हम ट्राई करते हैं, बिकॉज वी नो दिस थिंग
कि भाई यूपीएससी में जितनी ज़्यादा आप न्यूज़ हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फायदेमंद है. सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू मेक अ फाइन बैलेंस बिटवीन द कवरेज, कि कितने नंबर ऑफ इश्यूज हम कवर करते हैं प्लस कितनी डेप्थ में हम इश्यूज को कवर करते हैं. सो हम ट्राई करते हैं कि हम मैक्सिमम न्यूज कवर करें, मैक्सिमम ओपन कवर करें, बट डिटेल्ड डिस्कशन जो होता है वो हम कुछ न्यूज का ही करते हैं विच वी फाइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव. सो देयर विल बी 2 लेक्चर्स इन अ वीक. अभी ऑनलाइन मोड पे रहेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद वी विल डू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लेक्चर्स. तो एक दिन मैं लूंगा, एक दिन श्वेता मैम लेंगी लेक्चर्स. नेक्स्ट वी हैव इज mentorship, and this is again a very important component of this program. Not just this program, but any component of Civils Daily. Civils Daily is known for its mentorship, and if you don't believe it, you can read reviews on Quora by rankers, by our old students, that how detailed mentorship that we provide to each and every student, because we believe कि भाई देखो सीधी सी बात है, with information, with filling your mind with information, you will not be able to crack it. Your preparation should also be on the right track. तो जो गलतियां बाकी लोगों ने करी हैं वो गलतियां हम आपको अवॉइड करवाते हैं. आपको हम फोकस रखते हैं कि आप जो है you remain focused to your goal of cracking UPSC. So once you enroll, you will be assigned a dedicated CD Habitat platform, और उसमें you will be assigned to a dedicated group in a CD Habitat platform, and it will be headed by me, Atul sir, Ravi sir, rankers like Dr. Vipin Garg, Swapnil Pawar, etc. तो इस ग्रुप में क्या होगा? Let us see what can you expect on the Habitat platform of Civils Daily. First is, it's a convenient way to resolve your doubts and queries, and we will substantiate that with some screenshots at the end of this lecture. Secondly, you will be provided with the value added material, which is very important. Third is, you will have an ecosystem to study and learn from. Also, it will help you stay focused every day, because वहाँ पे रोज डिस्कशन चलते हैं. Also, in that Habitat platform, every day we will provide you the following things. 1, daily news analysis of the most important open of the day. Real time doubt clearance. So it's like Twitter. हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करानी होती है तो हम किसी बड़े आदमी को टैग करते हैं और हम हैशटैग के साथ कुछ ट्रेंड चलाते हैं. यहाँ पे भी आपको ऐसा ही करना है. You have to hashtag DDS. DDS means daily doubt solving. Hashtag DDS, and then you can raise your doubt कि भाई sir, this is my query, can you explain that? So after that, mentor जो होगा वो within some time, 1 घंटा 2 घंटे में वो उस query को resolve कर देगा. So we want that you should, जो भी आपके दिमाग में query आए, you just type it in the group rather than keeping it in your mind. Next is daily open discussion. Also, quizzes, mini test and CSAT, all these also are shared every day on the platform. Test discussions are also shared, or they are also conducted. Also, each discussion will be organized and stored as a separate thread for your future reference. So all these are part of the CD Habitat platform, and the best thing is that everything is in one place. Access to mentors, notes, references, everything is at one place. Also, those people who believe that they need to talk with the mentors on phone, they can always ping us, always ping the mentors, and the mentors will then attend or resolve your doubts over the phone. Also, if you can give the test, after the test, if you want to discuss your test with the mentor, that also you can do through scheduling a phone call. So let's see how we resolve. This is the Quora kind of review. Is it worthwhile to join our mentorship program? And these are some of the screenshots of our CD Habitat platform. So see, there is a student who has raised the doubt, DDS economy, and he has said, and his doubt is credit to GDP same as debt to GDP ratio, or is there a difference? Now our mentor Ajay Verma, he has replied to him in a simple language कि कैसे how it is
different. So first thing is that कि आप कोई भी query हो आपने raise करी, mentor उसका reply कर देगा. Next is see, there is a doubt and again a mentor has replied the doubt. Next we have is, so see here you are seeing that a student has raised the doubt that I need to talk to Ajay sir, mentor, over the phone. So here the mentor has replied, hi Asmita. So it means that if you want to schedule a call also, you can always ping the mentor here. Next we have is, see, these are news discussions. So we do every day, we do discussion at 4 p.m. of the everyday's news. So उस news का discussion जो है, that has started. There is a separate group which has been created for it. ठीक है? इसके अलावा see, let's see this thing. This is the daily OPED discussion. तो जो दिन के जो सबसे important OPED होता है उसको हम डिस्कस करते हैं with the students. If anybody has, तो we try to explain that in a very simple language. Idea is कि एटलीस्ट आपके पास आप कितने भी बिजी हो, एटलीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ओपन आया है उसको तो एटलीस्ट आप मत छोड़ो. तो इससे हम इंश्योर करते हैं कि वी आर कनेक्टेड विद द स्टूडेंट एवरी डे, डेली बेसिस पे वी आर कनेक्टेड विद द स्टूडेंट. This is all about the program. If you have any further queries, you can either call us on the number which is mentioned in the website, or you can mail us at hello@civilsdaily.com. The program is starting on 7th June. So see you in June. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.